Hi guys, in this lecture we are going to solve a problem. We have solved the similar kind of problem in the previous video also. So now I will read out the question of the problem. An epicyclic gear train consists of a sun wheel S. So this is the given epicyclic gear train. So it consists of a sun wheel S. So this is the sun wheel. Sun wheel means the gear which is at the center. We have already discussed about the sun and planet gear in the previous videos. So in this epicyclic gear train, this gear S acts as a sun. Next, a stationary internal wheel E. So here there is a internal wheel. This is the larger gear. This is the internal gear E. Okay, and it is stationary. Stationary means it is fixed. Fixed means the speed of this gear is 0. Okay, next, and 3 identical planet wheel P carried on a star shaped planet carrier C. So here there are 3 planet wheels. These are the 3 planet wheels. 1, 2, 3. These are the 3 planet wheels P. The name of all the 3 gears taken as P only, because the size and number of teeth on all these 3 gears are same, because all these 3 gears are meshing with the same gears, that is S and E. ओके, यहाँ पे 3 आइडेंटिकल प्लैनेट व्हील्स करके लिए हैं. प्लैनेट व्हील्स ये 3 है, 1, 2, 3. ओके, एंड दीज 3 प्लैनेट व्हील्स आर कैरीड ऑन दी or mounted on the star shaped, this is star shaped planet carrier. This is this only star shaped planet carrier means arm only. This star shaped arm we called as a carrier also. Okay, so this star shaped arm we called as a carrier also. So all these 3 planet wheels are mounted on this star shaped planet carrier. So this planet carrier is also known as planet carrier means arm only. Planet carrier means arm only. The name of this planet carrier is C. Okay, यहाँ पे ये 3 planet wheels है ना P. ये तीनों planet wheels जो है नहीं, ये स्टार शेप्ड आर्म पे माउंटेड है. ये वाला स्टार शेप्ड, इस पे ये तीनों गियर माउंटेड हैं. सो ऐसे स्टार शेप्ड आर्म को क्या बोलते हैं हम? प्लैनेट कैरियर करके बोलते हैं. जिस आर्म पे प्लैनेट व्हील्स माउंटेड रहते हैं ना, तो उसको हम प्लैनेट कैरियर करके बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, द साइज ऑफ डिफरेंट टूथ व्हील्स आर सच दैट द प्लैनेट carrier C rotates at 1/5 of the speed of sun wheel S. So here once again I will read out this sentence. The size of the different tooth wheels are such that the planet carrier C rotates at 1/5 of the speed of sun wheel S. So it means, the meaning of this sentence is, when sun wheel rotates 5 times, this planet carrier means this arm will rotate by one rotation. The meaning of this sentence is, when sun wheel rotates 5 times, okay, the planet carrier will rotate by 1 time. Okay, planet carrier means arm only, this star shaped arm. Okay. The minimum number of teeth on any wheels is 16. So here you have to take the minimum number of teeth on any wheel is 16. मतलब 16 टीथ से कम नहीं रहना चाहिए कौन से गियर पे भी. ओके, आपको मिनिमम टीथ जो है नहीं 16 तो कंसिडर करना चाहिए सभी व्हील पे. मिनिमम टीथ जो है नहीं सभी व्हील्स पे 16 तो कंसिडर करना चाहिए. 16 से कम नहीं लेना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. Okay, next, the driving torque on sun wheel S is 100 Newton meter. So here they have given the torque on wheel S. मतलब torque means force. The force on wheel S is given, that is 100 Newton meter. Next, determine the number. First one, the number of teeth on different wheels of a train. So सभी के number of teeth हमको यहाँ पे find करना है.
नेक्स्ट, टॉर्क नेसेसरी टू कीप द इंटरनल गियर स्टेशनरी. सो once again I will read out second task. Torque necessary to keep the internal gear stationary. So here the internal gear is E. Internal gear is E. To make this internal gear stationary means fix or the speed of this internal gear as 0, what will be the torque required on this gear E? मतलब ये gear E को gear E का speed 0 बनाने के लिए कितना torque होना चाहिए torque wheel E पे. ओके, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. मीन्स टॉर्क ऑन इंटरनल गियर फाइंड करना है. यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रहता है. एनी हाउ वी हैव रिटन इन द ब्रैकेट. हियर यू हैव टू फाइंड आउट टॉर्क ऑन व्हील इंटरनल गियर, दैट इज व्हील ई. व्हील ई पे टॉर्क कितना है वो फाइंड करना है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. So first we should write down the given data. So for that again I will read out the question here. An epicyclic gear train consists of a sun wheel S, a stationary internal wheel E. Stationary internal wheel E means the speed of wheel E is 0. Stationary means fixed. Here they have mentioned that stationary internal wheel E. So it means the speed of wheel E is 0. So NE is equal to 0. So here I will write, since wheel E is stationary, therefore NE is equal to 0. The speed of wheel E is 0. Next, and 3 identical planet wheel P carried on a star-shaped, this is star-shaped planet carrier C. The size of the different tooth wheels are such that the planet carrier C rotates at 1/5 of the speed of sun wheel S. It means when sun wheel rotates 5 times, the planet carrier will rotate 1 time. Okay, so here I have written मतलब इसका मतलब है सन व्हील जब 5 टाइम रोटेट होता है तो ये प्लैनेट कैरियर, ये जो आर्म है ना, एक बार रोटेट होता है. मगर यहाँ पे रोटेशन का डायरेक्शन कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम दोनों के डायरेक्शन ये गियर यस का और आर्म का रोटेशन जो है नहीं पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो यहाँ पे देखो NS जब सन व्हील 5 टाइम रोटेट होता है तो यहाँ पे 5 टाइम रोटेट पहले मैं सन व्हील का लिखता हूँ. NS इज इक्वल टू 5 RPM. आप RPM भी ले सकते हैं, RPS भी ले सकते हैं, या आप यूनिटी कंसिडर नहीं किए तो भी चलेगा. ओके, तो NS इज इक्वल टू प्लस 5 RPM. एज आई सेड हियर दे हैव नॉट मेंशन्ड द डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं पॉजिटिव लेता हूँ, मतलब इसका डायरेक्शन जो है काउंटर क्लॉकवाइज में कंसिडर करता हूँ. जब सन व्हील 5 टाइम रोटेट होता है तो आर्म जो है ना, ये जो आर्म मतलब प्लैनेट कैरियर C, ये जो है ना 1 टाइम रोटेट होता है. दिस इज 1. इसको भी मैं प्लस करके लेता हूँ बिकॉज इसका डायरेक्शन मेंशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है. ठीक है, इसको हम आप RPM भी ले सकते हैं, RPS भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. अगर नहीं आपको यूनिट कंसिडर नहीं करना है तो भी चलेगा. तो इसका डायरेक्शन भी मैं पॉजिटिवली यहाँ पे, इसलिए ये भी हुआ काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन एनी व्हील इज 16. तो यहाँ पे कौन से भी गियर का जो है नहीं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है नहीं 16 रहना चाहिए. 16 से कम कौन से गियर के भी टीथ नहीं रहना चाहिए. तो यहाँ पे यहाँ पे ये 16 जो है नहीं आपको कौन से एक गियर का नंबर ऑफ टीथ कंसिडर करना पड़ेगा. ये 16 जो है नहीं नंबर ऑफ टीथ कौन से एक गियर के नंबर ऑफ टीथ है करके कंसीडर करके या अज्यूम करके आपको लेना है. यहाँ पे और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन एनी व्हील इज 16. तो इसका मतलब सभी गियर के जो टीथ है नहीं 16 से ज़्यादा है, 16 से कम नहीं रहेंगे, ऐसे बोल रहा है. तो यहाँ पे क्या करना है, कौन से एक गियर का जो है नहीं आप जो है नहीं नंबर ऑफ टीथ जो है नहीं 16 करके कंसिडर करके अज्यूम करना है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजुअली क्या करते हैं हम, ये जो सन व्हील रहता है ना सेंटर में, उसके नंबर ऑफ टीथ जो है नहीं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है करके कंसिडर करते हैं. ये जो 16 जो है नहीं ये सन व्हील आप कौन से गियर के भी कंसिडर कर सकते हैं. ये 16 जो है नहीं
कौन से गियर के भी नंबर ऑफ टीथ करके ले सकते हैं, मगर यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर व्हील सन व्हील जो है ना उसके नंबर ऑफ टीथ मिनिमम करके कंसिडर करते हैं। तो इसलिए अभी क्या करते हैं हम सन व्हील के नंबर ऑफ टीथ जो है ना 16 करके कंसिडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कंसिडर द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील एस, कंसिडर द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील एस एज 16। ओके, यहाँ पे आप 16 कौन से भी गियर के, पी का भी ले सकते हैं, इंटरनल गियर ई का भी ले सकते हैं, ठीक है। मगर यूजुअली जो सेंटर में रहता है ना गियर, यहाँ पे सेंटर में गियर जो है ना यस है, तो इसके नंबर ऑफ टीथ हम 16 करके कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसलिए कंसिडर द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील एस एज 16, सो देयरफॉर TS is equal to 16. TS is equal to 16. So next यहाँ पे देखो, next ये होगा 16। next the driving torque on sun wheel is 100 Newton meter। व्हील गियर यस पे टॉर्क कितना करके कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क ऑन व्हील यस इज 100 न्यूटन मीटर। Okay, so now we shall find out first one the number of teeth on different wheels of a train। so यहाँ पे आप यस के गियर यस के नंबर ऑफ टीथ 16 करके लिए हैं, तो आपको अभी नंबर ऑफ टीथ पी का फाइंड करना है, ई का फाइंड करना है। ओके, और पी देखो तीनों सेम है, कौन से भी एक पी का गियर का आप फाइंड किए तो सभी का सेम ही रहेगा। अभी आपको यहाँ इसका मतलब होगा 2 गियर के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है, पी और ई। ओके, यहाँ TP is equal to question mark, TE is equal to question mark। so next task, TP is equal to question mark, TE is equal to question mark। next task number 2 here, torque necessary to keep the internal gear stationary। मतलब ये गियर इंटरनल गियर ई को स्टेशनरी फिक्स रखने के लिए कितना टॉर्क होना चाहिए व्हील ई पे। so that you have to find out, means torque on internal gear you have to find out। so here I have written torque on E is equal to question mark। okay, so यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है TP और TE के फर्स्ट। ओके, बट यहाँ पे हम वो डायग्राम यूज़ करके रेडियस फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ टीथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, 2 गियर के नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं है हमको। अगर एक ही गियर के नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं रहता था नहीं, तो हम डायग्राम यूज़ करके रेडियस का फार्मूला यूज़ करके, ठीक है, हम नंबर ऑफ टीथ फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे 2 गियर के नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं है, तो इसलिए हम डायग्राम और रेडियस फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ टीथ फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगेन वी हैव टू गो फॉर द टैबुलर कॉलम। so again we have to construct the tabular column, serial number, condition of motion, revolution of elements। मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है देखो आप, यहाँ पे गियर ट्रेन में गियर E1, गियर P2, यहाँ पे देखो ये तीनों गियर जो है नी सेम है, तो मैं तीनों गियर को एक ही कॉलम बनाता हूँ। तीनों गियर जो P जो है नी प्लैनेट व्हील्स, ये तीनों गियर सेम है, तो मैं तीनों गियर को एक ही टैबुलर कॉलम बनाता हूँ। P2 हो गया और यस 3। ओके, गियर यस इज 3 एंड दिस आर्म दैट इज कैरियर 4, मतलब 4 एलिमेंट्स हो गए। और एक बार यहाँ पे काउंट करता हूँ, गियर E1, प्लैनेट व्हील्स P2, सन व्हील 3 और लास्ट वन प्लैनेट कैरियर और आर्म इज 4। सो टोटल 4 कॉलम्स यू हैव टू मेक हियर। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4। सो ऑलवेज इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट द आर्म, यहाँ पे आर्म लिखना है। आर्म यहाँ पे प्लैनेट कैरियर बोले तो ही आर्म, प्लैनेट कैरियर बोले तो ही आर्म, ये वाला है ना आर्म है, RC। ओके, दैट इज NC। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे आपको गियर ट्रेन देखना पड़ेगा। आर्म के बाद कौन सा गियर लेना है उसको आपको गियर ट्रेन अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस गियर ट्रेन में इंटरनल गियर है क्या देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो इंटरनल गियर E है, यहाँ पे, तो इस गियर ट्रेन में इंटरनल गियर है, तो इसका मतलब आर्म के बाद हमको लार्जेस्ट गियर लिखना पड़ेगा।
आर्म के बाद हमको लार्जेस्ट गियर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस अरेंजमेंट में आपको देखने के बाद यहाँ पे गियर ई का साइज़ बड़ा है, गियर ई का साइज़ बड़ा है, तो आर्म के बाद हमको गियर ई लिखना पड़ेगा, आर्म के बाद हमको गियर ई लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे आप एक बार आर्म ई लिखने के गियर ई लिखने के बाद अभी आपको नेक्स्ट कॉलम में सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस में मतलब यहाँ पे आप गियर ई लिखे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है आपको, गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है, नहीं वो गियर लिखना है। अभी यहाँ पे आप गियर ई लिखे, गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है ना, उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है, गियर ई देखो पी के साथ मैच हो रहा है, गियर ई पी के साथ मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे भी लेते तो आप गियर ई पी के साथ ही मैच हो रहा है, यहाँ पे भी लेते तो आप गियर ई पी के साथ ही मैच हो रहा है। गियर ई जो है नहीं पी के साथ मैच हो रहा है। ओके, और सभी प्लैनेट व्हील्स को हम, सभी पी गियर्स को हम एक ही कॉलम कंसिडर किए हैं। सो गियर ई पी के साथ मैच हो रहा है, तो नेक्स्ट कॉलम में आपको गियर पी लिखो। ओके, नेक्स्ट कॉलम में जो गियर लिखना है आपको ये देखना पड़ेगा कि गियर पी किसके साथ मैच हो रहा है, वो गियर नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। गियर पी देखो, गियर पी नेक्स्ट यहाँ पे यस के साथ मैच हो रहा है, गियर पी यस के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो गियर एस नेक्स्ट कॉलम में लिखो, गियर एस यहाँ पे लिखो। तो ये होगा लिखने का सीक्वेंस में आपको टैबुलर कॉलम में। नेक्स्ट कंडीशन, सेम कंडीशन, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म फिक्स करना है। नेक्स्ट एंड आर्म के बाद कौन सा गियर है, गियर ई है, इसको स्पीड +1 स्पीड देना है। आर्म के बाद जो भी गियर रहता नहीं उसको +1 स्पीड देना है। यहाँ पे देखो, एंड गियर ई मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज CCW। ओके, सो ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये सब लिखना है। ये कंडीशन के हिसाब से आर्म इज फिक्स्ड, तो आर्म का स्पीड होगा 0, आर्म इज फिक्स्ड बोले तो आर्म का स्पीड होगा 0। ओके, नेक्स्ट गियर ई का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है +1 रेवोल्यूशन, वही यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे लिखिए आप कंडीशन में, गियर ई मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज, सो +1 यहाँ पे लिखना है। ओके, ये होगा गियर ई का स्पीड। नेक्स्ट जो है गियर पी का स्पीड लिखना है आपको। यहाँ पे आपको गियर पी का स्पीड लिखना है, तो गियर पी का स्पीड लिखने के लिए गियर पी किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे देखो गियर पी किसके साथ मैच हो रहा है, देखेंगे गियर पी जो है नहीं ई के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है और एस के साथ भी यहाँ पे मैच हो रहा है। गियर पी जो है नहीं ई के साथ भी मैच हो रहा है, एस के साथ भी मैच हो रहा है, ठीक है। गियर पी जो है नहीं ई के साथ भी मैच हो रहा है, एस के साथ भी मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम गियर पी का स्पीड लिखने के लिए प्रीवियस कॉलम में जो गियर लिखे रहते हैं नहीं उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसीडर करके इस स्पीड को लिखते हैं। और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे गियर पी जो है नी ई के साथ भी मैच हो रहा है, एस के साथ भी मैच हो रहा है, मगर गियर पी का स्पीड लिखने के लिए गियर पी से पहले जो कॉलम में गियर लिखे रहते हैं ना उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके आपको ये गियर पी का स्पीड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गियर पी से पहले गियर ई लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, गियर पी और ई मैच हो रहा है करके कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे गियर पी का स्पीड लिखेंगे, गियर पी ई के साथ मैच हो रहा है तो ई इसके नंबर ऑफ टीथ जो है नी न्यूमरेटर में लिखो, ऊपर वाले में गियर पी ई के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया आप, तो इसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर। आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, गियर पी का लिख रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक है। ये होगा इंटू वन कहाँ से आया बोले तो गियर पी किसके साथ मैच हो रहा है, ई के साथ मैच हो रहा है, तो ई का मैग्नीट्यूड, ई का जो ये 1 मैग्नीट्यूड है ना, ये प्लस साइन छोड़ के ये मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका गियर पी का भी साइन जो है नी प्लस होगा, क्यों बोले तो गियर पी और ई इंटरनली मैच हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर पी और ई इंटरनली मैच हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरनली मैच हो रहा है, गियर पी और ई इंटरनली मैच हो रहे हैं। जब दो गियर इंटरनली मैच हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन सेम रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो हम कंडीशन के हिसाब से हम गियर ई का जो डायरेक्शन है नी प्लस लिए हैं, गियर ई का जो डायरेक्शन है नी प्लस लिए, इसका मतलब गियर ई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, गियर ई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। गियर ई और गियर पी दोनों इंटरनली मैच हो रहे हैं, मतलब गियर ई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है बोले तो गियर पी भी एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमेगा, क्योंकि ई और पी इंटरनली मैच हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ गियर पी का भी डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, गियर पी का भी डायरेक्शन होगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट गियर एस का स्पीड लिखने के लिए
गियर एस किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। गियर एस यहाँ पे ये गियर एस है, गियर एस जो है ना पी के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी पी के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी पी के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी पी के साथ मैच हो रहा है। तो कौन सा भी एक गियर पी कौन सा भी पी गियर कंसिडर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो गियर एस जो है ना पी के साथ मैच हो रहा है। ओके, गियर एस जो है ना पी के साथ मैच हो रहा है। ओके, गियर एस जो है ना पी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो गियर एस का स्पीड लिखने के लिए गियर एस पी के साथ मैच हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर पी के नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर पी का है नहीं यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर में ऊपर, टी पी यहाँ पे ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, क्योंकि गियर एस जो है नहीं गियर पी के साथ मैच हो रहा है। ओके, आप नेक्स्ट कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, यस गियर का स्पीड लिख रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है नीचे। ओके, इनटू गियर एस पी के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, टी ई बाई टी पी इंटू 1, टी ई बाई टी पी इंटू 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे माइनस साइन, ये माइनस साइन कैसा है आपको दिखाता हूँ। यस और पी दोनों एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यस और पी एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। यहाँ पे यस और पी दोनों एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। जब दो गियर एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। ठीक है, जब दो गियर एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। यहाँ पे देखो हम पी का डायरेक्शन जो है ना एंटी क्लॉकवाइज लिए हुए हैं, पी का जो डायरेक्शन है ना एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं। यहाँ पे देखो आप पी का डायरेक्शन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्लस करके लिए, पी का जो डायरेक्शन है ना प्लस करके लिए, प्लस मतलब इसका डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, पी का डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज। और पी और एस दोनों एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। पी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है बोले तो एस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि पी और एस एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं। तो यस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया बोले तो इसका डायरेक्शन यस का डायरेक्शन होगा माइनस, यस का डायरेक्शन होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और एस एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं, पी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यस का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। ओके, तो यस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ बोले तो यस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ बोले तो माइनस, यहाँ पे माइनस लेना है। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखो टी पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या माइनस टी ई बाई टी एस, माइनस टी ई बाई टी एस इंटू वन, यहाँ पे टी पी कैंसिल करके ये वाला लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट अभी इतना लिख जाए तो ख़त्म। आप एज यूजुअल आपको वैसे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जैसे आप प्रीवियस प्रॉब्लम्स के लिए किया।